friends. Now we can discuss the next part, the geography section. In geography section, good evening friends. So the topic now will be the geography part, and remaining question we will be dealing regarding the geography. And as you know that question number 31, that is related to the world geography section, in which savanna grassland has been mentioned. Savanna, you are aware of, it is a tropical grassland, generally in Africa and South American side. And what is the question here? That grassland with scattered small trees, forest development in such area is generally kept in check by one or more or combination of some conditions. Though language is slightly a tough language to get along with that, but क्या मीनिंग है इस लैंग्वेज के कि सवाना में जो ग्रास लैंड है वो क्यों पाई जा रही हैं, उस एरिया में फॉरेस्ट क्यों डेवलप नहीं हो पाए हैं, वाई ट्रीज आर नॉट एबल टू रेज इन दैट एरिया. Then you have to know first of all that as far as this part is concerned, if we little bit focus upon the part here, that for example it is African continental area where savanna is dominant here, and you know it very well that it is the line that we call the equator, and you know equatorial area is high rainfall area where trees are growing more, like in Congo rainforest, trees are more. But once we go away from the equator, rainfall is decreasing. If rainfall decreases, then you are aware of tree growth is not possible. So even despite this fact that sunlight is in plenty, rainfall is lesser, and especially the seasonal rainfall, only little bit rainfall in summer, winter is dry in savanna region, therefore chance of the tree growth is minimized, and thus grass in that area. So this zone is savanna grassland in which rainfall is not much. So first of all if you see कि ट्रीज के प्लेस पर ग्रास क्यों है, इसमें एक फैक्टर, कौन सा फैक्टर होना चाहिए, सीजनल रेनफॉल. सो यू हैव टू कीप एन आई ऑन सिंप्लिसिटी. ओके, विच ऑप्शन कुड बी पॉसिबल. ओके, 4 इज करेक्ट टू मेक दिस एरिया ग्रास लैंड. घास के लिए कि ट्री की ग्रोथ नहीं हो रही ग्रास से. सेकेंड, if I talk about which could be another reason for grass in place of trees in that area, then you are aware of that as far as the savanna grassland, we have the animals more, and these animals in grassland like giraffe, like lion, like cheetah, they are fast running animal, and once they move, once they fastly moving here, then they trample the grass, they trample the vegetation. तो अगर कोई ट्रीज हैं तो उनको वो तोड़ सकते हैं, ट्री को ग्रो करने में समय लगेगा, बट ग्रास के अंदर एक नेचर होती है कि इफ़ इट इज़ डैमेज इट वुड अगेन कम बैक, इट वुड अगेन रिवाइव. सो वी इवन ऑब्जर्व दैट the kind of animals, especially grazing herbivores, they once run faster and they even consume the leaf etc., then grass can again come back. So you can say grazing herbivores also helping for grass growth than the tree growth. And if we now talk about that another reason is possible in that you can say 3 and 4 option, if you check, then easily you can realize that 3 and 4 option is only in option C. So without considering any other reason, even you would be reaching at which option? Option C. So it would be important that you have to make sure step by step, okay, what could be the main reason of grass in place of trees here. But if you see also the other reason, then fire is also a reason for grassland in place of trees. You know it very well that time to time it is tropical area and dry condition also, seasonal rainfall. So tropical condition में, dry condition में, hot and dry condition में, suppose वाइल्ड फायर जंगल में या इन एरिया में आग भी लग जाए तो ट्रीज अगर एक बार जल गए दे वोंट ईजिली रिगेन. बट ग्रास अगर यहाँ पे डैमेज भी हो गई, ग्रास कोड अगेन कम बैक. सो यू कैन से दैट फायर के वजह से भी ट्रीज पनप नहीं पा रहे हैं. सो व्हाट वी कैन नोटिस हियर, देन फायर इन दैट एरिया and seasonal rainfall helping hand in grass growth. So option would be 2, 3 and 4 in savanna grassland, unlike the equatorial rainforest.
unlike the equatorial region. So this area savanna grassland that is purposefully made by the nature for the grass, not for the trees. So some areas are meant for grass in succession than the trees. अगर वो चाहे भी वो area बदलना naturally, it can't be possible. So these are the factors for that reason. If we go ahead with that question, so friends, here you will see that next question, the question number 32, with reference to the water on the planet Earth, consider the following statements. Regarding the water, water is you can say one of the most important topic either PT or mains examination, and we notice that data regarding the water is very important. How much water in the ocean, how much water in the glacier, in newspaper, magazines, and also you would see in NCERT books, in every important you can say document in geography, we will be observing that water discussion. And if you see the water statement here, the first statement is that the amount of water in the rivers and the lakes is more than the amount of groundwater. So first of all, you have to make sure in your mind with the help of diagram, with the help of pie chart, or one idea you can take, okay, what is the real status of the water of the earth? Pani kitna hai, jal kitna hai? Then what you can notice here, that as far as main water, then main water of the earth in the ocean, approximately 97% water. So 97% water in Pacific Atlantic, that is saline in nature. Hardly 3% water or less than 3% water, remaining water. In that water also, if I want to know that in that water, which kind of water is there? Fresh water other than the ocean, and this fresh water is mainly in frozen form. We know the Antarctica ice, in ice sheet, ice cap, as well as the glaciers, even in the Greenland area, and the Himalayan zone that we call third pole. So we can say approximately 2% is our glacier ice sheet. And third kind of water, through the rainfall, some water has tendency to percolate. So you can say even groundwater afterwards. So top 3 in terms of percentage of water, first is ocean water in percentage, approximately 97%, and second is the frozen water that we call ice sheet, ice cap, as well as the glacier, as in polar area or in Himalayan zone or Hindu Kush area, and third is groundwater. Even this much information you are having, and everybody, a serious candidate must be aware of, okay, these ranking in descending order of the water. Just check on this basis, you can say whatever previous knowledge you have, the amount of water in the rivers and the lakes is more than the amount of groundwater. You check here कि third is groundwater, no mentioning of the river. तो river lake में इतना पानी नहीं है जितना groundwater में है. Basically we have this misconception, Ganga, Indus, Brahmaputra, Yangtze and many more rivers have amazing water. That is misconception. Surface water, flowing water is very negligible water. In fraction, river hardly having 0.0018%. In several data it could be even further lesser than that. So rivers have fraction of water, and river से थोड़ा ज़्यादा lake में होगा वो भी fraction में ही है. Ultimately they are not meeting with the ground water. So जितना पानी rocks के अंदर है, ground water में है, that is higher than the river and the lake or surface water. So first statement is the wrong in that ground, because here it is written river and the lake has more water than the amount of groundwater. तो ground water ज़्यादा है तो ये statement तो wrong हो गया. तो one can't be, and now we say A and C can't be now on this ground. And see the second statement, the amount of water in the polar ice cap and the glacier is more than the amount of groundwater. Yes, of course, it is 2% around the glacier ice cap, ice sheet, and third is groundwater. So second statement is correct. So very easy, you can say NCERT based, and here you could lead, and this question of the geography was easier. So you can say the only 2 is correct, the B option is correct. So I would suggest that इस तरह के क्वेश्चंस आपको लीड ज़रूर देंगे जो इजी हैं, वहाँ पर आप अपने नॉलेज को यूज़ करिए and take a pause and then assess, okay, what should be the answer of that. And question afterwards, if we say the remaining question 33, it is definitely a difficult question and it is not easy of these kind of question to be attempted with. और कोशिश ये की जाए कि इस तरह क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हैं, मोरिंगा या ड्रमस्टिक ट्री इज़ ए लेग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री.
You know, once you say evergreen tree, then we know ebony, mahogany, rosewood. Once we say deciduous, then we know saltic, shisham, sandalwood. So generally we are aware of so many trees, but the moringa or this one is a kind of term generally students are not aware of. So here we get confused, okay, what could be the answer? Okay, here confusion is there. Second statement you read, tamarind tree is endemic to South Asia. टैमरिंड एक इमली वाला पेड़ जो टैमरिंड होता है, तो टैमरिंड इंडिया में कोरोमंडल कोस्ट पर भी है, बट इंडिया में टैमरिंड जो साउथ एशिया इंडिया का ही पार्ट है, नो डाउट. सो इंडिया साउथ एशिया का पार्ट है बेसिकली, एंड वी से कि ओके टैमरिंड हमारे यहाँ मिलता है, बट टैमरिंड ट्रॉपिकल एक ट्री है एंड ट्रॉपिकल कंडीशन अफ्रीका में भी है. देन रिगार्डिंग टैमरिंड इफ वी डोंट नो कि इट इज़ एंडेमिक टू इंडिया, नेटिव टू इंडिया, एंडेमिक मीन्स नेटिव, सो दिस फैक्ट इज़ रॉन्ग and this fact easily can't be known to students. So generally इस तरह के क्वेश्चन में छोड़ देना बेहतर था, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जिन लोगों ने छोड़ा होगा वो छोड़कर खुश हुए होंगे, ना कि इसको करके वो चांस बढ़ेगा, क्योंकि इसकी नॉलेज होना, पहला स्टेटमेंट की भी नॉलेज नहीं है, सेकंड को भी जानना कि ये अफ्रीका का प्लांट है बेसिकली, नॉट साउथ एशिया. सो ये इंडिया का नेटिव नहीं है. वो अलग बात है कि इंडिया में टैमरिंड ट्रीज आर फाउंड बट नॉट अवर ट्री, रादर इन अफ्रीका द नेटिव और एंडेमिक टू अफ्रीका. So second is incorrect. If second is incorrect, so it can't be, okay, it can't be. Now check the kind of other. Okay, tamarind is collected as minor forest produce. Okay, चूँकि फॉरेस्ट के बहुत सारे पार्ट होते हैं जो कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के रूप में होते हैं, हनी एट्सेट्रा, देन इट इज़ ओके. थर्ड, बिकॉज थर्ड इज हियर एज वेल, एंड इफ वी से दी ऑप्शन में इधर भी इधर थर्ड एंड फोर्थ भी करेक्ट होगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन में है बी एंड सी में. नाउ 1 and 5 में देखते हैं कि सीड्स ऑफ दिस मोरिंगा, इट इज़ मोरिंगा एक्चुअली, एंड टैमरिंड कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्ट ऑफ बायोफ्यूल. एक्चुअली कुछ न्यूज़ आई है कि मोरिंगा टैमरिंड सीड में बायोफ्यूल बनाने की, बायोडीज़ल बनाने की बेसिकली एबिलिटी है. तो ये बायोडीज़ल कई तरीके से बन सकता है, बायोफ्यूल कई तरीके से बन सकता है. जो क्रॉप वगैरह होती हैं, लाइक वी कैन मेक द बायोफ्यूल बाई सोर्सेज लाइक जट्रोफा, लाइक करंज, एंड मेनी मोर अदर काइंड ऑफ वेजिटेशन एज वेल. तो चांस होता है कि वेजिटेशन के थ्रू बहुत सारे बायोफ्यूल बन रहे हैं. सो फिफ्थ इज़ करेक्ट, बट एज आई सेड कि इस बेस पर बी इज़ करेक्ट आंसर, बट only few would be aware of. Few means really fraction, just like the surface water, the river water. कुछ ऐसा ही सिनेरियो बनेगा इस क्वेश्चन में कि जैसे कि रिवर वाले केस में इतना कम पानी है अनलाइक द ओशन. सिमिलरली ओनली फ्यू विल बी देयर दोज हैव द करेज टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, बट ओके बी वुड बी द आंसर ऑफ दैट. एंड वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ कोर्स, इफ वी से द क्वेश्चन अदर देन दैट, क्वेश्चन नंबर 34, the black cotton soil of India has been formed due to the weathering of. It is the simple question again. So just say, just see that UPSC is giving you a task कि एक क्वेश्चन हार्ड, एक क्वेश्चन ईजी, कि कहाँ पर आपको अटेम्प्ट करना है, किसको छोड़ना है. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि विच क्वेश्चन यू हैव टू पिक, विच क्वेश्चन यू हैव टू लीव टू सिक्योर योर रैंकिंग ईयर or to at least cut down your blunders here. And if I say that black cotton soil, जो काली मिट्टी है भारत की, that is formed by the weathering of, weathering means breaking or weakening or loosening of the rock. That is due to which reason? brown forest soil है, या ग्रेनाइट या शिस की बनी हुई है, शेल लाइमस्टोन है, या फिशर वॉल्केनिक रॉक है. Then I am sure you know first of all black cotton soil means which area of India. Then you know it very well that in India, black cotton soil in which state of India? Mainly Maharashtra, this region, or Saurashtra area, or Malwa region. And this area known for Deccan Trap in Maharashtra. And this area is known for volcanic eruption. Massive volcanic eruption we all are aware of in India, in this area of Maharashtra, and northward also in Malwa region of Madhya Pradesh and Saurashtra area of Gujarat. So this zone is made up by volcanic rock. So volcanic rocks are seen largely in which part of India? This. And this volcanic rock by which magma, which lava got erupted in that area? The basalt rock. Then if I say nowhere basalt is mentioned, nowhere volcanic is mentioned except the B option. So you can say volcanic rocks जब टूटी
तो उससे आयरन रिच रॉक्स, टाइटेनिफरस मैग्नेटाइट, ए ब्लैक कॉटन सॉइल suitable to have the moisture retentivity or grazing the cotton crop, रे गुड सॉइल ऑल्सो वी कॉल। और ये फिशर का मतलब होता है कि इसमें ये थोड़ा नैरो ओपनिंग के थ्रू लावा क्रिटेशियस पीरियड में लॉन्ग बैक इरप्टेड इन द शीट्स लाइक दैट, एंड बाई ब्रेकिंग दैट ब्लैक सॉइल गॉट फॉर्म। सो आई वुड से कि इस तरह क्वेश्चन में आप ज़रूर अटेम्प्ट करें और बहुत चांस होगा कि बहुत से लोगों ने इसको ठीक किया होगा। बी इज़ द राइट ऑप्शन हियर। And go for the next question. And what is the next question here? That how is the permaculture farming different from the conventional chemical farming? You all are aware of there is a debate in India. Should we go for chemical farming? Should we go for sustainable farming? Should we go for organic farming? Should we go for chemical pesticide, chemical fertilizer based farming? Should we go for irrigation based or micro irrigation based farming? So there is a debate. In that debate we are observing कि जितना केमिकल फार्मिंग इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हुई है उससे एक मोनोकल्चर आ गया है राइस और वीट का। पंजाब में, हरियाणा में ज़्यादा फर्टिलाइज़र, राइस एंड वीट। सो व्हाट वी कैन से कि पर्माकल्चर फार्मिंग जो यहाँ पूछा गया है, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग जो ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट में या केमिकल फर्टिलाइज़र बेस्ड जो फार्मिंग थी उसके अगेंस्ट पर्माकल्चर फार्मिंग डिस्करेजेस द मोनोकल्चर प्रैक्टिस, but in conventional chemical farming monoculture practice are predominant. So what is the thumb rule to solve this kind of question? If you know कि ये conventional chemical farming है, ये negative tone वाली है, तो इसके प्रॉब्लम भी नेगेटिव होंगी। केमिकल है इसमें मैक्सिमम केसेस में कुछ नेगेटिव इसके एस्पेक्ट्स होंगे एनवायरनमेंट के तौर पर, एनवायरमेंटल इश्यूज़ के तौर पर। सॉइल को ख़राब करेगी, वाटर को डिप्लीट करेगी, एंड ऑल्सो वी कैन से द केमिकल कंटेंट वुड बी मोर इन द फूड चेन। So this is a negative connotation. On the other hand, permaculture, perma or permanent culture also we call, in which we go for those kind of plant which are variety of the trees etc. perennial plant जो लंबे समय तक टिके रहे उस एरिया में, like बड़े प्लांट ट्रीज वगैरह को भी प्रमोट किया जाए जो नेचुरली ग्रो करते हैं। अगर किसी एरिया में आप जाएं तो आप देखते हैं ग्रास भी है, ट्री भी है। सो नेचुरली जो एक सिस्टम बनता है, तो नेचुरल इकोसिस्टम की मिमिक्री है पर्माकल्चर, जिसमें परमानेंट ट्रीज को भी या पेरिनियल प्लांट को भी मौका मिलता है, एंड दैट इज़ मोर सस्टेनेबल, मोर इकोलॉजिकल, हेल्दी, हैविंग द पॉजिटिव कनोटेशन। तो इसका थोड़ा इम्पैक्ट पॉजिटिव है। लेट्स सी कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो एनवायरनमेंट के लिए। तो विच वुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट? पर्माकल्चर डिस्करेजेस मोनोकल्चर। मोनोकल्चर इज नेगेटिव थिंग एंड डेफिनेटली पॉजिटिव पर्माकल्चर वुड डिस्करेज दैट थिंग। तो मोनोकल्चर ऑफ राइस एंड वीट इन पंजाब हरियाणा ग्रीन रेवोल्यूशन टाइम, तो पर्माकल्चर इसके अगेंस्ट है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन वन, दिस वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड इज conventional chemical farming can cause increase in soil salinity, but the occurrence of such phenomenon is not observed in permaculture. Again conventional chemical farming है, soil को भी हानि पहुंचाएगी। आप देख रहे हैं पंजाब में, हरियाणा में ओवर इरीगेशन हुआ है और सॉइल काफ़ी सलाइन पाई जा रही है। सो वी कैन से जहाँ जहाँ पर ओवर इरीगेशन है, सॉल्ट ऊपर आ गए हैं, सैलिनिटी बढ़ती जा रही है, एंड दिस केमिकल फार्मिंग दैट रिक्वायर ऑल्सो मोर इरीगेशन फैसिलिटी, देन ऑफ कोर्स ओवर इरीगेशन की वजह से सैलिनिटी की प्रॉब्लम है। बट पर्माकल्चर में चूँकि वो इकोसिस्टम फ्रेंडली है, पॉजिटिव मीनिंग के लिए है, देन ऑफ कोर्स इट इज़ द स्टेटमेंट ऑल्सो करेक्ट। So 1 and 2 correct. 1 and 2 you can think of, okay, 1 and 2 in this option 1 to 4 में दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसे ही आप इसको कि ओके बी के चांस बन रहे हैं 1 to 4 वाला। पर फिर भी चेक करिए थर्ड वाला, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज ईजिली पॉसिबल इन द सेमी एरिड रीजन बट पर्माकल्चर फार्मिंग इज नॉट सो ईजिली पॉसिबल इन सच रीजन। कन्वेंशनल फार्मिंग के लिए इरीगेशन ज़रूरी है, सेमी एरिड एरिया है, शुष्क एरिया है, रेनफॉल नहीं हो रही है, इरीगेशन नहीं है, तो कन्वेंशनल फार्मिंग पॉसिबल नहीं है। बल्कि पर्माकल्चर वाली फार्मिंग हम कई एरिया में कर सकते हैं। थर्ड इज़ रॉन्ग। तो थर्ड रॉन्ग वाला ऑप्शन इंडिकेट कर रहा है कि बी इज़ हियर, थर्ड ऑप्शन इज़ नॉट गिवन हियर। एंड प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्माकल्चर। मल्चिंग इज़ ए काइंड ऑफ कवर ऑन द सॉइल, और इस कवर से सॉइल के अंदर मॉइस्चर बना रहता है। और ये मल्चिंग ये इंडिकेट कर रही है कि पर्माकल्चर जो गार्डन वाली टेक्निक है, हेल्दी टेक्निक है, इसमें पत्तों का गिरा रहना, ये एक नेचुरल जंगल या नेचुरल एक ग्रास है, इसको भी इंडिकेट करता है कि जो नेचुरल सिस्टम है हमारे। तो पर्माकल्चर
एक मेथड है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि नेचर को हम मिमिक्री करें या नकल करें और उसके तरीके से वैरायटी को प्रमोट करें, मोनोकल्चर को डिस्करेज करें. तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट हियर, द फोर्थ ऑप्शन, एंड बी इज द आंसर हियर. And after question number 41, if you see the questions in that progression, then the question here, the 42, with reference to palm oil, consider the following statements. Palm oil, you are aware of, agriculture में recently government of India is focusing more. Then one issue is oil seed and oil palm, in which continuously prices are getting increased in terms of the vegetable oil. And either you talk about mustard or you talk about the sunflower or other oil, so much costlier getting. So we are dependent too much on Indonesia, Malaysia, we are importing a lot. तो इस बैकग्राउंड में ये क्वेश्चन बना है. बट इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न क्या हुआ कि डेटा में हमेशा पढ़ते हैं हम लोग कि इंडोनेशिया मलेशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं हम पाम ऑयल, एंड उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल पाम करके एक मिशन भी लॉन्च किया है रिसेंटली. सो इन दैट वे इफ़ आई से पाम ऑयल ट्री नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया, तो जो लोग सोचते हैं प्रोडक्शन जहाँ पर ज़्यादा है वहीं पर नेटिव होगा, तो यहाँ पे हमें रुकने की नीड है कि यूपीएससी में प्रोडक्शन होना क्रॉप का एक अलग है, पर वो ट्रैप करना चाह रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं पूछा. द यूपीएससी इज आस्किंग ईयर नेटिव, कि ये नेटिव प्लांट है साउथ ईस्ट एशिया का या नहीं है. मेनली यू विल सी दैट प्लांट्स जनरली कि जो राइस है वो इंडियन नेटिव है, वीट मिडिल ईस्ट का है, और बहुत सारे प्लांट अफ्रीका के, अमेरिका के हैं. तो ये अफ्रीकन प्लांट है एक्चुअली वेस्टर्न अफ्रीका में, तो नेटिव प्लांट ऑफ वेस्ट अफ्रीका. तो नेचुरली तो ये वेस्टर्न अफ्रीका का प्लांट है. धीरे धीरे ये कॉलोनियल टाइम में जो कॉलोनियल रूलर थे वो इंडोनेशिया मलेशिया अपनी कॉलोनीज़ में इन्होंने प्लांट किया. सो ग्रेजुअली इंडोनेशिया बिकेम द नंबर 1, मलेशिया सेकंड, बट इट इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट. सो फर्स्ट इज़ रॉन्ग एंड फर्स्ट इज़ रॉन्ग, then 1 1 1, automatically 2 and 3 would be correct without noticing what is second statement, third statement. So second and third, palm oil is a raw material for some industries. क्योंकि palm oil आप जानते हैं ऑयलिंग पार्ट होगा तो लिपस्टिक वगैरह में, कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ होगा, और ये बायोफ्यूल बनाने में भी काम आएगा, ये एडिबल ऑयल में भी काम आएगा, मेनी मोर इंडस्ट्रियल यूसेज ऑफ दैट. सो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, एंड palm oil can also be used to produce biodiesel, it is also correct. So sunflower, palm oil, several kind of oil based products used in the biofuel. So B is the option here. So B is correct option of question number 42 as well. And see the next question here. The question with reference to the Indus river system of the following 4 rivers. Indus river पर हमेशा क्वेश्चन आते हैं. रिवर एक पेट टॉपिक है यूपीएससी का, नदियों पर इंडस हो, गंगा हो, ब्रह्मपुत्रा हो, साउथ इंडियन रिवर्स हो, पेनिनसुलर रिवर, दोज वी कॉल. जनरली द क्वेश्चन वुड बी देयर. सो वी हैव टू नो ओके रिवर्स पर क्वेश्चन बनने थे, हमने प्रिपेयर किया भी होगा, तो सभी लोगों ने इसको प्रिपेयर किया होगा रिवर वाले पार्ट को. बट क्वेश्चन इज व्हाट, विद रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग 4 रिवर्स, 3 ऑफ देम पोर इनटू वन ऑफ देम. 3 ऐसी रिवर्स हैं जो एक ही रिवर में जाके मिल जाती हैं, विद ज्वाइंस, वो रिवर फिर इंडस में डायरेक्टली जुड़ती है. तो अमंग द फॉलोइंग विच वन इज सच रिवर दैट ज्वाइंस द इंडस डायरेक्ट. तो इस क्वेश्चन के लैंग्वेज इज स्टेटिंग यू दैट वो कौन सी रिवर है इंडस सिस्टम में, वो उसकी कौन सी ट्रिब्यूटरी है इंडस की, जिसमें 3 रिवर बड़ी बड़ी आकर मिलती हैं, फिर ये रिवर इन तीनों रिवर को मिलाकर फाइनली इंडस से जाके मिलती है. देन इफ लिटिल बिट आइडिया ऑफ द मैप यू हैव, सपोज यू नो इट इज़ अवर लद्दाख रीजन, and here we have the Jammu Kashmir, here we have the Himachal, Uttarakhand. Then in this map if I say river Indus is flowing in that manner, and that is going to Pakistan. But one more river of Kashmir Valley, the Jhelum river, but Jhelum is not directly meeting with the Indus. One big river Chandrabhaga और चेनाब रिवर, जहाँ पे एक रेल ब्रिज भी बनाया जा रहा है इंडिया का सबसे ऊंचा. ये फेमस रिवर जो चेनाब रिवर है, ये बेसिकली लाहौल स्पीति वैली से 12 शिगरी ग्लेशियर से निकल कर दैट गोज टू दिस एरिया दैट वी कॉल द जम्मू कश्मीर फ्रॉम हिमाचल, एंड देन दिस रिवर इज मीटिंग, और झेलम से जाके झेलम का पानी इसमें मिल जाता है. तो वन साइड झेलम दैट इज ज्वाइनिंग विद चेनाब रिवर, CH फॉर चेनाब, JH फॉर झेलम.
बट यू वुड सी वन मोर रिवर नियर रोहतांग पास के पास से हिमाचल से एक रिवर आती है पंजाब से होकर जम्मू बॉर्डर से होकर, एंड दिस रिवर ऑल्सो ज्वाइनिंग इन चेनाब। तो चेनाब से झेलम मिली, चेनाब से रावी भी मिली। बट चेनाब से इफ़ आई टॉक अबाउट एक और रिवर का वाटर मिलता है यहाँ से, सतलुज रिवर एंड ब्यास रिवर का ज्वाइंट वाटर इज़ ऑल्सो मर्जिंग विद चेनाब। एंड फाइनली जब ये सब वाटर मिल जाएगा, एक प्लेस पड़ता है पंजनाद, तो वहाँ पर ये वाटर मिलकर मिठानकोट के निकट इंडस में जाके मिलता है। सो दिस रिवर इज़ विच रिवर ईयर? चेनाब रिवर। चेनाब में रावी का पानी भी जाके ऐड हो रहा है, चेनाब में झेलम का वाटर भी जाकर ऐड हो रहा है, चेनाब में सतलुज का वाटर भी जाकर ऐड हो रहा है, और फाइनली चेनाब डायरेक्टली मीटिंग विद रिवर इंडस। एक सोर्स में ब्रिटेनिका में ये थोड़ा कंफ्यूज कर दिया गया, इन विच इट हैज़ बीन रिटन कि चेनाब रिवर इज़ ड्रेनिंग इनटू सतलुज, then a confusion got created. However, either you see the government data or many more sources, then you will be observing कि Chenab river is the final river joining with Indus in Pakistan at Mithankot after incorporating Jhelum water as well। क्योंकि 3 रिवर जो मिल रही हैं, तो तीनों रिवर को आप चेक करिए कि अगर सतलुज रिवर को हम मान भी लें तो सतलुज से पहला वाटर जाके मिल रहा है ये चेनाब का, एक ही रिवर हुई, और सतलुज से रावी जाके डायरेक्टली नहीं मिल रही, रावी चेनाब में जाके मिलती है, झेलम भी नहीं मिलती है। तो 3 रिवर पहले लिखा गया है स्टेटमेंट में, 3 ऑफ देम पोर इनटू दैट रिवर। तो व्हाट इज दैट रिवर? तो डेफिनेटली इट इज विच रिवर? रिवर चेनाब। आंसर वुड बी ए। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन अनडाउटेडली। रिवर पर बना हुआ एक अच्छा क्वेश्चन था, कन्फ्यूज़ करने के लिए बहुत था, चेनाब सतलुज का कन्फ्यूज़न था इसमें, बट चेनाब इज़ द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट इज विच क्वेश्चन ईयर? With reference to India, 44 number question, Didwana, Kachman, Sargol and Khatu are the names of। चारों नेम एक बार देखिए और आप घबराइए मत, बिकॉज यू वुड बी स्केयर्ड ऑफ कि ये सरगोल क्या है, खाटू क्या है, कचमन क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट यू नीड नॉट टू लूज द करेज हियर। अगर थोड़ा सा आप कूल पेशेंस बनाए रखेंगे, एक टर्म ज़रूर आपने कभी सुनी होगी, डिडवाना। डिडवाना एक फेमस लेक है इंडिया की, एक लेक है ये इंडिया की, डिडवाना लेक, और ये राजस्थान की लेक है। राजस्थान इज हॉट एंड ड्राई कंडीशन। इन हॉट एंड ड्राई कंडीशन यू नोट वेरी वेल दैट evaporation rate is very high, and in evaporation rate high and rainfall is less desert area। तो रेन कम है यहाँ पर, ड्राई कंडीशन है राजस्थान में, थार डेजर्ट में, एंड टेम्परेचर इज हाई, दैट्स वाई evaporation more, less fresh water, and through evaporation fresh water is evaporated and salt remain there। So generally lakes are more salty, like which famous lakes are there? Sambhar lake, also we call Didwana lake। So Didwana in Nagaur district of Rajasthan, Sambhar west of the Jaipur। So these are the famous names, salty water lake। Then Didwana is can't be mangrove। तो डिडवाना एक लेक है, फेमस है, और राजस्थान में कोई मैंग्रोव नहीं है, डेजर्ट एरिया है मेनली, एंड ऑल्सो ये ग्लेशियर भी नहीं होंगे। डिडवाना वाला एरिया ठंडा एरिया नहीं, गर्म एरिया है, राजस्थान का एरिया है। एंड या तो सलाइन लेक है या रामसर साइट है। रामसर साइट बेसिकली बहुत पॉपुलर साइट होती है जिसमें सांबर तो है, पर डिडवाना को अभी डिक्लेयर नहीं किया गया। सो यू कैन से डी ऑप्शन वी हैव, एंड दिस वुड बी डिडवाना। कचमन, कचमन भी नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और भी राजस्थान की ये लेक सैलाइन लेक। सो ओवरऑल सॉल्टी लेक और सैलाइन लेक ड्यू टू द हाई इवोपरेशन रेट एंड लेस वाटर, यू कैन से द डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। So D is correct. Now check the question ahead of that and see the question 45 number. Again the river. Consider following river. So river is a kind of popular you can say topic. कई साल से river पर agriculture पे question आए हैं. तो river पर एक expected question और भी. For example, South Indian river, Brahmani. South Indian means peninsular river. So these are the peninsular river, seasonal river. And peninsula means Chota Nagpur Plateau, Karnataka Plateau, many more area. So generally peninsular plateau की काफ़ी river यहाँ पर हो सकती हैं, या कुछ घाट भी हैं, western घाट, eastern घाट. And if you see in this area, one river Brahmani. Brahmani, a famous river of Odisha, and Odisha, Jharkhand, Bengal, even touch each other. And this area we call Chota Nagpur Plateau. Suppose if you know the India here, then in India one famous plateau is mineral rich area, Chota Nagpur Plateau.
in which we have Damodar river, we have Suvarnarekha river, we have also the river like Brahmani. तो ब्राह्मणी छोटा नागपुर प्लेटियो झारखंड के एरिया से निकलती है, जहाँ इसको एक साउथ कोयल और एक रिवर और मिलती है, शंख रिवर, और ब्राह्मणी रिवर बन जाती है। एक फेमस रिवर है झारखंड की, पर ये उड़ीसा में आती है। तो ब्राह्मणी रिवर का ओरिजिन छोटा नागपुर प्लेटियो है, दिस रीजन छोटा नागपुर प्लेटियो। बट यहाँ क्या लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमिंग फ्रॉम द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट तो यहाँ पर है, तो ईस्टर्न घाट से तो रिवर नहीं निकल रही है, ये रिवर तो बेसिकली छोटा नागपुर की रिवर है, तो छोटा नागपुर। तो यू कैन से नंबर 1 इज इनकरेक्ट। So number 1 here as well, so D can't be, A can't be, option either would be B and C, in which 4 is common. तो वंशाधारा of course ईस्टर्न घाट से निकलती है उड़ीसा, एंड इसमें विवाद भी है। उड़ीसा आंध्रा का वंशाधारा पर एक ट्रिब्यूनल भी बना हुआ है, वंशाधारा ट्रिब्यूनल, आंध्रा उड़ीसा वेस्टर्न घाट रिवर। बट लेट्स सी, वन रिवर इज सुवर्णरेखा, वन रिवर इज नागावली। सुवर्णरेखा ए फेमस रिवर दैट इज फेमस फॉर स्टील प्लांट, जमशेदपुर अगेन झारखंड, again Chota Nagpur. So Suvarnarekha north of Brahmani, this river again coming from that region and falling into Bay Bengal. So Suvarnarekha is not originating from that. Easy question Suvarnarekha, and you can say कि if I say Suvarnarekha can't be, so 1 and 3 can't be. Remaining option Vamshadhara, okay 4, and also the second option Nagavali भी एक river है जो कि आंध्रा उड़ीसा की river है, Nagavali in Odisha. So option 2 and 4 you can say the correct. B is the right answer. So B you can say. So question number 45 also, and question number 42, the river Vamshadhara and river. Now it is very important to note down here कि question solve करने में आप कोशिश क्या करें कि जो easy way है कि क्या हम हटा सकते हैं option. Let's check the next question, and the next question is here, question number 46. द ग्लोबल ओशन कमीशन के बारे में कि लाइसेंस देंगे सी बेड अथॉरिटी के लिए। आजकल डीप सी माइनिंग पर बहुत चर्चा चल रही है, और डीप सी माइनिंग के लिए एक बॉडी है जो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है, ISA जिसको कहा जाता है, ISA। पर यहाँ लिखा है ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट द लाइसेंस, इट इज़ ISA इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। और इंडिया को भी एक एरिया मिला हुआ है कि ये हमारा EEZ के बियॉन्ड सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में मैग्नीज़ के नोड्यूल को निकालने के लिए हमने ISA से ये सेंट्रल इंडियन ओशन के अंदर ये एरिया मिला हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट है ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट करता है लाइसेंस, नो इट इज़ ISA। सो फर्स्ट इज़ रॉन्ग, सो फर्स्ट इज़ रॉन्ग ईयर। ऑटोमेटिकली सेकंड एंड 3 वुड बी करेक्ट बिकॉज फर्स्ट इज़ ईयर एज वेल। सो B 2 and 3। तो जो भी लोग जानते हैं ISA इज़ द राइट आंसर, इन प्लेस ऑफ दैट दे कुड ईजिली से ओके 2 and 3। एंड इंडिया हैज़ गॉट द लाइसेंस फ्रॉम सीबेड, यस ऑफ कोर्स, इन सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन। और अंदर ओशन के बेड पर भी कुछ रेयर अर्थ मिनरल होते हैं थ्रू वॉल्केनिक इरप्शन एटसेट्रा इन हाइड्रोथर्मल वेंट। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, द सेकंड एंड थर्ड, द B ऑप्शन। सो यू मेक इट सिंपल, एंड इफ 10 क्वेश्चंस आर देयर, 5-6 कुड बी अटेम्प्टेड विद यू कैन से कॉन्फिडेंस कन्विक्शन, और 1-2 में बाद में रिस्क ले सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इन दैट वे, which one of the following is the water efficient crop? इट इज़ ए क्वेश्चन वेरी सिंपल, वेरी ईजी, हर किसी ने अटेम्प्ट किया होगा, बट इसको पूरा पढ़ना ज़रूरी था। जितना छोटा क्वेश्चन लग रहा है उतना ध्यान से पढ़ना था। एंड द विच वन इज़ द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप? लीस्ट वाटर से लगता है सबसे कम पानी खत्म करने वाला, बट लिख दिया एफिशिएंट, यानी वाटर एफिशिएंट मीन्स कि सबसे कम पानी, लीस्ट वाटर एफिशिएंट मीन्स सबसे ज़्यादा पानी, जिसमें पानी ज़्यादा हो रहा है। तो लीस्ट वाटर एफिशिएंट को अगर जोड़ लेंगे साथ में तो ये मोर वाटर कंज्यूमिंग, जिसमें कि एफिशिएंसी बहुत कम है, सबसे कम एफिशिएंसी है, और वो शुगर केन होगा, क्योंकि पल मिलेट में, ग्रैम में, सनफ्लावर में पानी की खपत कम होती है, बट शुगर केन में पानी बहुत देना पड़ता है। वेस्टर्न यूपी में वाटर टेबल इज डिप्लीटिंग, सेम इन महाराष्ट्र। तो शुगर केन, राइस लेस वाटर एफिशिएंट क्रॉप, इसलिए गवर्नमेंट डिस्करेज कर रही है कई एरिया में शुगर केन और राइस को। तो आंसर वुड बी ए। बहुत सारे लोगों ने पल मिलेट किया होगा, बट स्टेटमेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इन दैट, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द ट्रॉपिकल जोन, द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशंस आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शंस ओविंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेड विंड्स। अब ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा स्टेटमेंट कर दिया, ट्रॉपिकल एरिया कर दिया। सो व्हाट वी कैन नोटिस हियर दैट ट्रॉपिकल जोन, देन ट्रॉपिकल जोन में
if we talk about one kind of winds are running and these wind we call साउथ ईस्ट ट्रेड विंड और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, और ये ट्रेड विंड जो चलती हैं यहाँ के पानी को भी खिसकाकर वेस्ट में ले जाती हैं ओशन के, और चूँकि ये इक्वेटर का वाटर है तो ये वाटर वार्म होगा और यहाँ आकर इकट्ठा हो जाएगा। जैसे नॉर्मल टाइम में ऑस्ट्रेलिया के पास में ईस्टर्न साइड पर जो पैसिफिक का वेस्ट है वहाँ पे कुछ गर्म पानी इकट्ठा हो जाता है, एंड दैट वुड बी करेक्ट स्टेटमेंट कि वाटर ये वार्म हो जाएगा, फिर ट्रेड विंड खिसका कर लेकर आएंगे वेस्ट की ओर, तो दैट इज़ राइट स्टेटमेंट। एंड द टेम्परेट जोन वेस्टर्ली हवाएं जो होती हैं वो लेकर जाएंगे गर्म पानी द वेस्टर्न सेक्शन की ओर, ये भी करेक्ट है कि वेस्टर्ली विंड चलती हैं नॉर्थ, ये थोड़ा इसके नॉर्थ में टेम्परेट रीजन में, ये भी यहाँ का कुछ गर्म पानी उठाकर यूरोप की ओर लेके जाएंगी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की फॉर्म में। तो टेम्परेट रीजन में वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ओशन वी कैन से ये, तो जो ओशन का ईस्ट होगा कॉन्टिनेंट का वेस्ट होगा, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो बोथ 1 and 2 हियर करेक्ट। मैप बना के दिखा सकते हैं आप इस बात को आप, एंड वी कैन से ओके सपोज यू हैव द मैप हियर अफ्रीका एंड यू हैव द पार्ट दिस हियर, and then finally this side westerly wind bringing the warmer water on this side of the ocean, तो ये अटलांटिक ओशन का ईस्ट है और यहाँ पे गर्म पानी इकट्ठा हो गया है, और इस साइड में आप देखेंगे ट्रेड विंड जो होती हैं यहाँ का गर्म पानी इधर इकट्ठा कर देंगी वेस्टर्न इंडियन ओशन में, लाइक दैट। नाउ टेक द क्वेश्चन, आई थिंक द लास्ट ऑफ द ज्योग्राफी इन दैट वे, और सेकेंड लास्ट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ नॉट 49, that is 50 basically the question of the geography here. In 50 number, leaf litter decomposes faster than in any other biome and as a result the soil surface is often almost bare. तो इसमें कहा गया है कि जो पत्ते वगैरह गिरे हुए हैं जल्दी डिकम्पोज हो रहे हैं, फास्टर डिकम्पोजिशन, जहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह ज़्यादा होंगे और वेजिटेशन इज लार्जली डिकम्पोज यू कैन से। बट इसको पूरा पढ़िए और पूरा पढ़ने पे लगेगा कैनोपी वहाँ पर ज़्यादा है, क्लाइंबिंग वाले प्लांट भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे ट्रीज़ कौन से होंगे जिनकी कैनोपी होगी या ऐसे क्लाइंबर होंगे जो सनलाइट के लिए एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे होंगे। तो ऐसे एरिया में हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लाइक अमेजॉन, लाइक कांगो एट्सेट्रा, ये पेट क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि जहाँ पर सॉइल तो लेस फर्टाइल है, हॉट ह्यूमिड कंडीशन में बैक्टीरिया ज़्यादा है, डिकम्पोजिशन ज़्यादा है, सॉइल ख़राब है, बट वी कैन से कि जोन के अंदर प्लांट बहुत दिखाई पड़ते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आंसर विल बी डी। सो हियर आई वुड से कि लेट्स होप जो इजी क्वेश्चन थे वो आपने पिक किए होंगे और राइट चॉइस रही होगी, और मोरिंगा या टेमरिन जैसे क्वेश्चन छोड़े होंगे, एंड डेफिनेटली ऑल दी बेस्ट फॉर यू। एंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इंडिकेटिंग कि ज्योग्राफी का शेयर भी एक इम्पॉर्टेंट है इस पार्ट पर क्वेश्चन आपको देखकर ही चूज़ करने होंगे कि अगर 12 क्वेश्चन है तो हमें 8 अटेम्प्ट करने हैं या सब अटेम्प्ट करने हैं। तो आई वुड से कि काफ़ी रैशनल होना पड़ेगा कि सब अटेम्प्ट नहीं करने, 2 या 3 जो टफ क्वेश्चन होंगे, डिफ़िकल्ट होंगे, स्टेटमेंट नहीं जानते उनको छोड़ सकते थे, अदरवाइज़ बाकी क्वेश्चन में अटेम्प्ट लिया जा सकता था। थैंक यू वेरी मच।